Hello, we are going to have children class somewhere at the stairs. Since we didn't get the key, so we'll continue the children class. Where we get space, stair only will do the children class. Key नहीं तो stair. Okay. So we fortunately got the key. So children class will be there the scheduled place at the fourth floor. Hare Krishna. Hare Krishna, welcome devotees to the Sunday program. So thanks all of you for coming to the program. सभी भक्तों का हमारा संडे प्रोग्राम में स्वागत है, हार्दिक स्वागत है। तो आज का टॉपिक होगा भगवद गीता
5वें अध्याय और श्लोक नंबर 6 तो देखेंगे हम लोग. So we recite the shloka together. First I will recite and you can repeat after me. Sannyasasthu mahabaho dukkhamaptum mayogada yogayukto munirbrahma nachirena digacchati. Sannyasasthu mahabaho dukkhamaptum mayogada yogayukto munirbrahma nachirena digacchati. Sannyasasthu mahabaho dukkhamaptum mayogada yogayukto munirbrahma nachirena digacchati. Prabhu, does anybody want to recite? Sannyasasthu mahabaho Sannyasasthu mahabaho dukkhamaptum ayogata dukkhamaptum mayogata yogayukto munirbrahma yogayukto munirbrahma nachena adhigacchati. nachirena digacchati. Anybody know that is? Anybody want to recite? Sannyasasthu mahabaho dukkhamaptum mayogata yogayukto munirbrahma nachirena digacchati. Everybody is recite. Sannyasasthu mahabaho dukkhamaptum mayogata yogayukto munirbrahma nachirena digacchati. Anybody else want to recite? English? Okay, so we read a word rule. Sannyasa, the renowned scholar of life. Two, but Mahabaho, O mighty Amban. Dukkham, distress. Aptum, afflicts one with. Ayogata, without devotional service. Yoga Yuktaha, one engaged in devotional service. Muni, a thinker. Brahma, the supreme. Nachirena, without delay. Adhigacchati, attains. Translation by Divine Grace Srila Prabhupada ki. Merely renouncing all activities, yet not engaging in devotional service of the Lord, cannot make one happy. But a thoughtful person engaged in devotional service can achieve the supreme without delay. So we recite the prayers. Om Jnanatimirandasya Jnananjanashalakaya Chakshurumilitana Tasmai Shri Gurave Namah. Shri Chaitanya Manoshishtam Sapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadanti Swapadantikam Vande Shri Guru Shri Yuda Padakamalam Shri Bhuri Vaishnavamsha Shri Rupam Sahagrachadam Sahagana Raghunadanvitam Tam Sachivam Sadvedam Savadodam Parijana Sajidam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Saganalita Shri Vishakam Vividamsha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpade Gopesha Gopika Kanda Radha Kanda Namaste Taptadanjana Gauraki Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sude Devi Pranamami Haripriye Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubheva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah Nama Om Vishnupadaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimade Bhaktivedanta Swami Nidhi Namine
नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी भाषातिरेशकारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna. So, once again, I would like to welcome all devotees to the Sunday Feast program. So, before I start, I just would like to know how many of you cannot understand English. Like, आप में से कितने लोग हैं जिसको अंग्रेजी बिल्कुल समझ नहीं आता है? ऐसा आप बता सकते हैं? आपको सब और एक कितना लोग हैं? एक्चुअली मैं थोड़ा कोशिश करूँगा, लेकिन मेरा मातृभाषा हिंदी नहीं है, तो कोशिश कर सकता हूँ थोड़ा मिक्स करके बोलने के लिए। तो इंग्लिश सब चलेगा आपको? लेकिन वो क्लियर होगा ना, आप हिंदी तोड़ के बोलेंगे तो समझ जाएंगे। ठीक है, कोशिश करता हूँ। तो आज का टॉपिक है, श्लोका है, संन्यासस्तु महाबाहु दुर्गम आप्तुम अयोगदा योगयुक्तो मुनि ब्रह्म न चिरेणानि गच्छति। सो वी आर डिस्कसिंग द 5th चैप्टर ऑफ भगवद गीता। 5वां अध्याय भगवद गीता का डिस्कशन चर्चा हो रहा है। तो हियर एक्चुअली वी आर डिस्कसिंग अबाउट योगा प्रोसेस एंड ऑल्सो एक्शन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो ये श्लोक में भगवान ये बता रहे हैं कि merely renouncing the activities, तो त्याग देना, जो हमारा जो नियमित कर्म है उसको सिर्फ त्याग कर देने से, मगर भगवान की प्रति कोई भक्ति नहीं है, सिर्फ इसको छोड़ने का, नहीं तो सिर्फ विरक्ति से हमको पूरा फायदा नहीं मिलेगा, वो हम लोग कुछ नहीं रह सकते हैं। ये तात्पर्य है इस श्लोक का। So merely renouncing all activities yet not engaging in devotional service of Lord cannot make one happy, but a thoughtful person engaged in devotional service can achieve the supreme without delay। तो जो भक्त है भगवान का, जो भगवान के भक्ति सेवन में व्यापृत है, उनको भगवान का चरण प्राप्त करना बहुत आसान है, बहुत जल्दी वो प्राप्त कर सकता है। ये तात्पर्य है। So let us see what actually what are the main points today. Yeah. So there are some top points. I think I'm not sure how many of you, anybody is coming first time today? पहली बार जो आ रहे हैं आज। तो एक्चुअली हम लोग ऑलरेडी एक 5वें अध्याय में है, चैप्टर भगवद गीता में रीच 5th चैप्टर। तो कुछ टॉपिक्स ऑलरेडी हम लोग चर्चा कर चुका है, तो उसके बाद में थोड़ा सा हम लोग जो हमने पहले पढ़ चुके हैं उसको दोबारा दोहराएंगे ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि पहले जो क्लासेस में क्या चर्चा हुआ, उसको दोहराएंगे फिर से। मतलब थोड़ा सा छोटा संक्षिप्त रूप में उसका आलोचना करेंगे। तो इसमें क्या है, सबसे पहला चीज़ है कि योगा जो वर्ड है भगवद गीता में, योग जो पद है योग, ये तो बार बार आता है ना, जैसे कर्म योग है, ध्यान योग है, ज्ञान योग है, ध्यान योग है, अष्टांग योग है। तो योग, ये जो योग वर्ड का मीनिंग किसी को मालूम है? सबको पता है योग का क्या मतलब है? एकाग्रता। Anybody else? What is the yoga word? Yoga means योग। योग कनेक्शन, या सो कनेक्शन। तो योग मतलब जोड़ना। तो योग का मतलब है कि किसी के साथ जुड़ना। तो किसके साथ जुड़ना है? भगवान के साथ। तो योग जो पद है उसका अर्थ तब संपूर्ण होता है जब उसका ताल्लुक भगवान के साथ होता है, नहीं तो योग का कोई मतलब नहीं। आज के ज़माने में हम लोग योग बोले तो क्या है, थोड़ा आसन करता है, जैसे कि अष्टांग योग है ना। सो आसना, प्राणायाम,
लयमा नियमा, राइट। सो इस तरह का 8 ये अंग है योगा, इसलिए अष्टांग बोलते हैं, अष्टांग योग। लेकिन क्या है, वो भगवान के जो साथ जो कनेक्शन है वो सब लोग भूल गए, मतलब वो नहीं है आज के युग में। तो योग लोग इसलिए करते हैं कि शरीर को एक तंदुरुस्त रखने के लिए और मन को शांति मिलने के लिए, इसके लिए योग करता है। लेकिन एक्चुअली योग का असली मतलब मीनिंग ये है कि भगवान के साथ जुड़ना। तो ये जो योग प्रक्रिया है अष्टांग योग का, ये हमको ऐसा एक परिस्थिति में लेकर आता है जहाँ भगवान का हम लोग ध्यान कर सकते हैं अच्छी तरह से। ये उसका प्रथम उद्देश्य ये है योग का। लेकिन आजकल तो सिर्फ हम लोग शरीर और मन के लिए योग करता है, लेकिन जब तक भगवान का संबंध नहीं है तो योग का कोई प्रयोजन नहीं है। तो ये पहला एक समझना है। तो बेसिकली योगा इज टू कनेक्ट टू द गॉड। So unless until we do the connection, establish the connection with the Lord through the yogic process, the yogic process doesn't have any meaning. So we have different yoga. One is karma yoga, then gnana yoga, dhyana yoga, ashtanga yoga. So this is called yoga ladder. तो योगा का एक सीढ़ी जैसा है ना, एक स्टेप। तो पहला कदम है कर्म योग, उसके बाद आता है ज्ञान, उसके बाद ध्यान और उसके बाद भक्ति। तो भक्ति योग जो है वो सर्वश्रेष्ठ है। तो भक्ति में आने के लिए हम लोग स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो हम लोग डायरेक्टली भी भक्ति में जा सकते हैं। अगर कोई भक्ति का कृपा है, भगवान का कृपा है, जितना हम लोग हमारे अंदर में जितना सिंसियरिटी है, तो उसके हिसाब से हम लोग डायरेक्टली भक्ति भी दे सकते हैं। तो ये हम लोग समझ गए कि योग का मतलब क्या है, भगवान के साथ जुड़ना है। तो कर्म योग हो, जो भी योग हो, उसका अल्टीमेट, उसका अत्यंत जो लक्ष्य है भगवान के साथ जुड़ना है। तो अब कर्मयोग का मतलब है कि कर्म जो आप करेंगे उसका फल में आप अटैच नहीं है, मतलब क्या बोलते हैं, आसक्ति नहीं है आपको फल में। आप कर्म करते हैं, लेकिन वो कर्म का जो फल है वो भगवान को अर्पण करने से वो कर्मयोग हो जाता है। क्योंकि तो भगवान का जो ये आता है ताल्लुक आता है। फिर उसके बाद इसी तरह ज्ञान योग का भी, ज्ञान योग बोलो तो अपने जो बुद्धि है उसको हम लगा के अध्ययन करते हैं। इस तरह से हम लोग ज्ञान का हासिल करता है और ये ज्ञान से हम लोग भगवान को जानने की कोशिश करता है। ज्ञान हो गया। और ज्ञान योग बोले तो मेडिटेशन है, जो भगवान के ऊपर मेडिटेट करना। मेडिटेट को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? ध्यान करना। तो इस तरह से अष्टांग योगिक प्रोसेस के हिसाब से जैसे यम प्राणायाम वगैरह करके जो योगीज करता है, भगवान को ध्यान करके भगवान का साक्षात करने की कोशिश करता है। अपने हृदय में जो भगवान स्थित है उसको जानने की कोशिश करता है। तो ये ज्ञान हो गया। और सर्वोत्तम है भक्ति योग। तो भक्ति योग में क्या होता है कि भक्त जो है भगवान की शरण लेता है। भक्त अपना जो ताकत में भगवान को जाने की कोशिश नहीं करता है। भगवान के पूरा शरण लेके भगवान का जो आशीर्वाद है और भक्तों का आशीर्वाद है, वैष्णवों का आशीर्वाद है, वो प्रक्रिया से भगवान को जानने की कोशिश करता है भक्त। तो इस तरह से होता है। ठीक है। तो ये जो श्लोक है आज टुडेज श्लोक है, व्हाट कृष्ण इज सेइंग इज दैट सो जनरल कोई भी जो मार्ग है भगवान की तरफ, उसमें आप हमेशा ही सुना होगा कि वैराग्य के बारे में सुना होगा। वैराग्य, तो वैराग्य, व्हाट इज वैराग्य? एवरीबॉडी कैन टेल? Renunciation. Right? Renunciation is a more difficult word. So what it means basically is to give up the attachments. तो हमारा जो attachments है, attachments what we call in Hindi? संसार में रह के संसार से परे रहते हैं, मुक्त रहना। जैसे पानी में कमल रहता है, जो पानी नहीं लगता है, उसी तरह संसार में रह के संसार आसक्ति, attachment, आसक्ति। ये सिंपल वर्ड है attachment। ठीक है, आसक्ति है जो, तो हमारा बहुत सारा आसक्ति है, जैसे कि हमारे परिवार के साथ हमको बच्चा है, अपना पति पत्नी, नहीं तो हमारे रिश्तेदार, हमारा घर, हमारा मकान, हमारा गाड़ी, सबसे हम लोग अटैच है। तो ऐसा ये हद तक हम लोग अटैच है कि कभी कभी हमको एक पर्टिकुलर जगह पे सोएगा तो ये नींद आता है, नहीं तो ये तकिया मेरे को चाहिए, ये इस तरह का मेरे को बिस्तर चाहिए। तो इस तरह से हम छोटा मोटा चीज़ से भी बहुत आसक्त रहता है। So we are very much attached to the small things. So actually, renunciation is a process by which we try to reduce the attachments. Right? We try to give up the attachments. So the comforts, attachments, we try to minimize the attachment. So here actually what the Lord is saying is that only by just detachment, right? Actually we cannot become happy. तो ये मतलब तात्पर्य है कि जो आसक्ति छोड़ने से, विरक्त होने से, सिर्फ विरक्ति से हमको खुशी नहीं मिलता है।
हम खुश नहीं होता है। ठीक है, तो खुशी के लिए क्या चाहिए? विरक्ति से खुशी मिलता है। कैन वी बिकम हैप्पी बाय डिटैचमेंट? व्हाट डू यू थिंक? So some extent we may become peaceful, right? Because if we are having too much attachment, then we are always concerned about it. No? So I have, like, if my car is there, I am too much attached to the car. Then actually there is a small scratch, no? While going some scratch up, then we become disturbed, right? But one who is not attached to the car, he will not be so much affected, even if the car is scratched. So to some extent, by detachment, we can become little peaceful. But then the permanent happiness, जो विरक्ति से हमको तात्कालिक खुशी मिल सकता है, मतलब शांति मिल सकता है। जैसे कि आप अगर ज़्यादा अपना गाड़ी से ज़्यादा अटैच हो और गाड़ी में कुछ हो गया, कुछ एक्सीडेंट हो गया, तो आप बहुत दुखित हो जाता है। ठीक है, तो जो आदमी गाड़ी से आसक्त नहीं है उसको ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होता, गाड़ी में कुछ हो गया तो इसी तरह हमारा जो रिश्तेदार है, किसी को कुछ हो जाता है तो हम लोग दुखित हो जाता है ना, उसको कुछ हादसा हो जाता है, कुछ बीमारी आ जाता है तो हम लोग दुखित हो जाता है। तो जो आदमी नहीं तो जो भी है वो आसक्त नहीं है, उससे ये फायदा है कि वो ज़्यादा ये जो उच्च नीच जो होता है हमारे जिंदगी में, ऊपर नीचे, ऊपर चढ़ा, उससे ज़्यादा उसको प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन जो अल्टीमेटली कुछ जो हायर हैप्पीनेस जो है, हायर स्तर का जो आनंद है, वो तभी होता है जब हम लोग भगवान के साथ जुड़ जाते हैं। तो इसका ये मतलब है कि जैसे कि एक उदाहरण है, जैसे कि बच्चा जो है वो कोई आइसक्रीम खाने से बहुत आ सकता है, तो उसको हमेशा आइसक्रीम चाहिए। नहीं तो आजकल बच्चे लोग मोबाइल से आ सकते हैं, उसको हमेशा मोबाइल चाहिए। तो आप अगर मोबाइल बच्चे से छीन लेगा तो क्या होता है? गुस्सा करेगा और बहुत कुछ रो जाएगा, बहुत दुखी हो जाएगा। तो उसको खुश करने के लिए और कुछ उसका बेहतरीन चीज़ कुछ देना पड़ेगा उसको। ठीक है, और कुछ चीज़ अच्छा चीज़ अगर देगा तो ये छोड़ देगा। ठीक है, इसी तरह हमारा भी हर लोग जो है, हर जीव जो है, उसको कोई कुछ अगर मतलब कुछ बोलता है ना, कुछ वो करिए कुछ पाता है, मतलब कुछ हमको कुछ हायर चीज़ जो देता है, कोई और बेहतरीन चीज़ देगा, तभी हमको थोड़ा शांति और हमको आनंद मिलता है। सिर्फ आप बोला कि सब कुछ छोड़ दो तो आप आनंद नहीं होता है, आपको दुख हो जाता है। लेकिन आपको कुछ और बेहतरीन चीज़ मिल गया तो आप खुश हो जाते हैं, मतलब प्रॉब्लम नहीं है। इसी तरह यहाँ भगवान ये बताता है कि हम लोग आर्टिफिशियल प्रोनाउंसिएशन, क्या होता है आर्टिफिशियल प्रोनाउंसिएशन? नकली होता है, नकली जो विरक्ति है ना, उससे आपको खुशी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये मैंने तात्पर्य यहाँ पे। और क्या है हमारा जीवन का उद्देश्य, क्या है आपके जो आप समझ गए आज तक, क्या हमारा जीवन का उद्देश्य है? व्हाट इज द एम ऑफ योर लाइफ? तो भगवद गीता पूरे सेकंड का क्लास को समझना देश की नहीं चलो तो इज द अपने अंदर भगवान को पहचानना है। We have been so in this material world rotating in different species of life, right? So there are 84 lakh species of life. 84 लाख योनि है अलग अलग। तो जीव जो है करके दूसरा शरीर लेता है, उसके बाद दूसरा शरीर लेता है। इस तरह से वो चक्कर में हमेशा जन्म मृत्यु जरा व्याधि का चक्कर में हमेशा पड़े रहता है। तो ये जन्म में हम लोग हो सकता है कि अच्छा परिवार में जन्म हुआ, बहुत पैसा है, बहुत खुशियाँ हैं, लेकिन अगला जन्म क्या होगा कोई भरोसा नहीं है। लेकिन जन्म कोई भी जन्म हो, ये तो गारंटीड है कि सुख और दुख दोनों होगा। ऐसा नहीं कि किसी का जन्म सिर्फ सुख है, ऐसा कोई नहीं है। तो सुख है तो दुख भी होगा। तो इस तरह से हम लोग ना अनादिकाल से ये चक्कर में पड़ा हुआ है, उलझन में पड़ा हुआ है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि का। तो कभी कभी हम मनुष्य शरीर में रहता है, कभी कभी हम पेड़ पौधे के शरीर में रहता है, कभी जानवर के शरीर में रहता है। इस तरह से अलग अलग योनि में घूमते रहता है जीव। तो ये क्या, व्हाट इज द रीजन फॉर टेकिंग डिफरेंट बर्थ्स? तो जीव का जो डिजायर जो है, उसका जो आशा है,
कामना जो है जीव का, और कामना और उसका कर्म, ये दो चीज है जो उसका अगला शरीर तय करता है। ठीक है, तो अगर आपको कोई मांस खाने का बहुत इच्छा है, मांस, तो क्या होता है, हो सकता है कि आपको अगले जन्म में शेर का शरीर मिल सकता है। ठीक है, तो जिसको बहुत घूमने फिरने का, एक उड़ने का ऐसा शौक है, उसको एक पक्षी का शरीर मिल सकता है। और दो चीज़ है, आपका जो कामना और दूसरा क्या है, कर्म। तो ये दोनों के हिसाब से आपको प्रकृति एक शरीर देता है। भगवद गीता में कहता है कि ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति ब्रह्मायं सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। तो यंत्रारूढ़ानि मायया, तो मतलब ये है कि माया जो है, माया को प्रकृति भी बोलते हैं। जो माया जो शक्ति है, भगवान का शक्ति है, जो भौतिक प्रपंच को संभालता है, जो माया दुर्गा देवी, तो उसको प्रकृति बोलते हैं, मूल प्रकृति। तो एक जीव का जो वासना है, तो उसका कामना और उसका कर्म, वो देख के ये शरीर छोड़ने के बाद प्रकृति उसको और एक शरीर देता है। ठीक है, तो इसलिए बोलते हैं यंत्र। तो शरीर एक यंत्र जैसा है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, तो भगवान सबका शरीर में, हृदय में स्थित है परमात्मा के रूप में। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति ब्रह्मायं सर्वभूतानि, भ्रमण करना, तो सर्वभूत इस तरह का 84 लाख योनि में जीव भ्रमण करता है। ब्रह्मायं सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया, तो माया एक यंत्र, जो शरीर, जो एक यंत्र रूपी शरीर को जीवन को प्रदान करता है, उसका कामना और उसका कर्म के हिसाब से। ठीक है, तो हमारा जो शरीर, ये तो हमारा जिंदगी में जो भी होता है, कभी कभी हमको लगता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने कभी कोई गलती नहीं किया, ऐसा क्यों हो गया। और वो जो दूसरा आदमी है वो हमेशा बुरा काम करता है, लेकिन वो ऊपर जा रहा है। तो इस तरह का हमको हमेशा उलझन रहता है, ऐसा क्यों होता है। लेकिन हमको ये समझना है कि प्रकृति और परमात्मा जो है, ये हमेशा कभी गलत नहीं होता है, गलती नहीं करता है। जो भी हमको हो रहा है, हम लोग उसके लिए योग्य हैं, उसके लिए हम लोग कर्म के अनुसार पिछला प्रारब्ध रहता है। So we deserve that actually. So according to what we deserve, so इसमें कोई गलती नहीं होता है। तो बल्कि ऐसे ही हो सकता है कि हमको लगेगा कि हमारे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन हम लोग क्या क्या, बहुत सारा जन्म में क्या क्या किया हमको मालूम नहीं है, क्या क्या कर्म पिछला इतना हजारों लाखों जन्म जो है, उसमें जो भी अलग अलग कर्म हम लोग जो किया है, उसका फल ऐसा नहीं कि आज जो किया उसका कल मिलेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है, लेकिन बहुत बार ऐसा नहीं होता है कि आज जो कर्म किया हमको उसका बहुत जन्म के बाद उसका फल मिलेगा। ठीक है, इसलिए जो भी होता है हमारे साथ वो सही है, मतलब हमको लगेगा कि गलत है, लेकिन क्योंकि हम लोग एक छोटा सा जिंदगी दिखता है ना, या 100 साल में तो 50 साल 7 साल का एक छोटा जिंदगी हम लोग देखते हैं, लेकिन उसके पहला क्या हुआ हमको मालूम नहीं है। तो इसलिए हमको लगता है कि गलत है, लेकिन जो भी हो रहा है हमारे साथ साथ सही। तो जनरली क्या होता है कि जो आध्यात्मिक जो so when we take this spiritual path, so most of the people who take the spiritual path, what is the purpose is मार्ग या आध्यात्मिक मार्ग में जो चलता है, उसका लक्ष्य क्या है कि जन्म मृत्यु का चक्कर से बचना। तो उसको क्या बोलते हैं, मुक्ति बोलते हैं। तो एक्चुअली जो 4 पुरुषार्थ होता है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, तो ये जनरली ये लोगों का यही उद्देश्य होता है। ये वैदिक जो ग्रंथ है वो सामान्य रूप में इसके बारे में बोलता है, जन्म मृत्यु धर्म अर्थ काम मोक्ष, इसके बारे में भाषा बताता है। लेकिन एक्चुअली वो 5वां जो पुरुषार्थ है वो भक्ति होता है, क्योंकि ये लिबरेशन जो है, मुक्ति का यही मतलब है कि जन्म मृत्यु का चक्कर से बाहर आना। ठीक है, उसके बाद क्या करेगा, ये सवाल हो सकता है ना। सो इफ यू गेट आउट ऑफ द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, व्हेन यू आर लिबरेटेड, व्हाट देन? दैट क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट एक्चुअली। सी जस्ट गेटिंग लिबरेटेड इज नॉट द एंड ऑफ द स्टोरी। सो दिस मटेरियल वर्ल्ड इज कंसीडर्ड लाइक ए जेल। ये जो भौतिक प्रपंच जो है उसको एक जेल के साथ तुलना किया हुआ है। तो जो जीव है वो भगवान से रिबल किया है,
विरोध में जो हो गया। तो एक्चुअली जो सभी जो जीव है वो हमारा ओरिजिनल स्थान जो है, हमारा एक्चुअल स्थान है वो भगवान के साथ है, भगवत धाम है। सब लोग वहाँ था, लेकिन कभी कभी कुछ लोगों को ऐसा आशा हो जाता है कि मुझे कुछ एंजॉय करना है, मतलब भगवान का सेवा नहीं करना है मुझे। तो भगवान कभी किसी को फोर्स नहीं करता है। तो जो ऐसा लोग जो भगवान के विरुद्ध करता है वो उसको ये आध्यात्मिक जो बौद्धिक प्रवृत्ति बनाया गया है, मेटीरियल बोल, तो इसलिए दुर्ग बोलता है इसको। एंड दुर्गा, जो दुर्गा देवी है, ये प्रपंच का सुपरिटेंडेंट है। जेल में सुपरिटेंडेंट रहता है, उसी तरह दुर्गा देवी जेल का सुपरिटेंडेंट है। तो ये जो बौद्धिक प्रपंच एक जेल जैसा है, ठीक है। और इसमें कैसा है कि जो भी जीव इधर आता है उसका जो इंटेलिजेंस जो है, उसका बुद्धि है, वो कवर हो जाता है, माया की पर्दा उसके ऊपर पड़ जाता है। तो इसके वजह से वो सोचता है कि मैं एक शरीर है। एक्चुअली हम लोग जो भी जीव है, हम शरीर नहीं है। शरीर सिर्फ अभी बताया ना, जैसा कि यंत्र है, एक मशीन है, क्योंकि हमारा जो वासना है, जो हमारा कामना है, उसको पूरा करने की एक मशीन दिया है। और एक ऐसा सोचो कि ये बौद्धिक प्रपंच, जो बौद्धिक जगत है, ये एक क्या बोलते हैं उसको, ये वीडियो गेम, आपको मालूम वीडियो गेम सुना है? वीडियो गेम ये तो एक मूवी हम लोग जाते हैं, कभी कभी मूवी थिएटर में हम लोग जाते हैं सिनेमा देखने के लिए, तो क्या है, पूरा अंधेरा हो जाता है, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा लगता है हमको कि हम लोग है ना उसमें इतना मग्न हो जाता है कि हम भी उसका जो दुख है, जैसा कि उसका हीरो दुख होता है ना, तो हमको भी दुख लगता है ना। तो लोग कभी कभी रोता है, कभी हंसता है, क्योंकि वो टाइम पे क्या होता है कि हम लोग अपना जो आइडेंटिटी भूल जाता है और हम लोग उसका मिल जाता है। तो इसी तरह जो जीव, जो ये प्रपंच में बौद्धिक लोग जगत में जब आता है, तो उसको भूल जाता है कि वो आत्मा है। वो सोच लगता है कि वो ये शरीर है, ये मेरा आइडेंटिटी, मेरा नाम ये है, ये मेरा बच्चा है, ये मेरा हस्बैंड है, वाइफ है। इस तरह से हम पूरा, जैसे कि एक हमारा क्या बोलते हैं, स्वप्न में हम लोग कभी कभी ऐसा लगता है ना कि पूरा आग लग गया और हम लोग चिल्लाने लगता है, ये तो कोई शेर हमको पकड़ने के आता है, चोर आता है, तो कभी कभी हम लोग चिल्लाता है, होता है ना। तो इसी तरह हम लोग है ना भूल गया कि हमारा ओरिजिनल आइडेंटिटी क्या है, और हम ये सोच के बैठा है कि मैं शरीर है, और ये मेरा बच्चा है, ये मेरा बीवी है, ये मेरा हस्बैंड है, पति है। तो इस तरह से हम लोग, तो ये माया का खेल है। माया ऐसा एक जाल रचाता है बौद्धिक प्रपंच में कि सब जीव ये भूल जाता है कि वो आत्मा है, वो सोचने लगता है कि शरीर है। तो बेसिकली अभी आध्यात्मिक जो आध्यात्मिक मार्ग का लक्ष्य ये है कि तो प्रथम लक्ष्य लोगों का ये है कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये चक्कर से बाहर निकलना, तो इसको लिबरेशन ऑफ मोक्ष बोलता है। दिस इज मोक्ष। बट एक्चुअली लिबरेशन इज नॉट द अल्टीमेट। सो जैसा कि जेल में कोई रह रहा है 2 साल से, तो पहला उसका लक्ष्य होता है कि जेल से बाहर निकलो, तो ये बाहर निकलने के लिए मोक्ष बोलता है, ठीक है। लेकिन बाहर निकलना इज नॉट, ये उसके बाद क्या करेगा, ये सवाल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। बाहर निकल गया, बाहर निकलना इंपॉर्टेंट है, लेकिन बाहर निकलने के बाद क्या करेगा। अब कुछ लोग ऐसा करते हैं कि वापस चोरी करने लगता है, ये तो और कोई काम, तो कुछ फायदा नहीं, वापस जेल में आ जाएगा। लेकिन तो इसी तरह ये मोक्ष का यही मतलब है कि आप जेल से निकल गया, अभी आगे आप क्या करने वाला है, ये सवाल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसलिए लिबरेशन में तो मोक्ष आत्यंतिक लक्ष्य नहीं है, ये पहला एक कदम है। उसके बाद क्या करेगा, तो ये श्लोक में भगवान बोलता है कि जैसे कि डिटैच हो गया, विरक्त हो गया, लेकिन आपको मोक्ष भी मिल गया, आप सोचो। लेकिन अगर आप भगवान की सेवा में युक्त नहीं होता है तो आपको कभी आनंद नहीं मिलता है। कोई जेल से निकल गया, लेकिन उसको कुछ काम धंधा नहीं है, वो इधर उधर भटक रहा है, तो उसको आनंद मिलेगा, थोड़ी देर के लिए आनंद मिलता है, क्योंकि वो बहुत 10 साल से जेल में पड़ा है, उसको कोई वो स्वातंत्र नहीं था उसको, ठीक है। लेकिन स्वतंत्र होने से क्या है, उसको थोड़ा आनंद मिलता थोड़ी देर के लिए। लेकिन कोई काम धंधा नहीं मिलेगा, कोई अच्छा ये नहीं मिलेगा, एंगेजमेंट नहीं है, तो फिर उसको ज़्यादा वो स्टेज पे नहीं रह सकता है। इसी तरह जीव भी मोक्ष मिलने से, नहीं तो मुक्ति मिलने से उसको आत्यंतिक आनंद नहीं मिलता, ठीक है। तो ये श्लोक में प्रभुपाद जी पर्पट में बताता है कि 2 तरह का आध्यात्मिक स्पिरिचुअल आध्यात्मिक दो तरह का लोग रहता है, ठीक है। एक जो है वो ब्राह्मण में विश्वास करता है, मतलब वो ये सोचता है कि जो परम सत्य जो है, परम सत्य एक लाइट प्रकाश है, जैसे कि ब्रह्मज्योति,
वो समझता है कि परम सत्य का कोई रूप नहीं है, वो अरूपी है, उसका कोई गुण नहीं है, लेकिन वो लाइट जैसा है, मतलब रोशनी जैसा। तो ये एक लोग का विचारधारा है, एक ठीक है। तो इसको इन लोगों को मायावादी भी कहा जाता है। और दूसरा जो है भगवान का भक्त, वो ये समझता है कि परम सत्य है, एक भगवान है, उसका एक रूप स्वरूप है, जैसे कि परम सत्य भगवान श्री कृष्ण है। तो ये दो तरह का विचारधारा है, ठीक है। तो पहले जो विचारधारा है उन लोग वो ज्ञान का मार्ग का अवलंबन करता है, जैसे कि वो अपना शक्ति से, अपना बुद्धि से भगवान को जानने की कोशिश करता है, जैसे कि शास्त्र का पठन अध्ययन करने से, इस तरह से ज्ञान करने से, तो अपना खुद का शक्ति और बुद्धि से भगवान को जानने की कोशिश करता है। और दूसरा जो पद है उसमें जो लोग हैं वो भगवान का शरण लेता है, भक्तों का शरण लेके भगवान का सहायता से भगवान को जानने की कोशिश करता है। So instead there are two types of people. One is called the impersonalist, who actually thinks that the absolute supreme doesn't have a form, it is like that. And other people is actually thinking that absolute truth is a person. So we call Krishna the supreme personality of Godhead, right? Parama पूज्य, परम दिव्योत्तम पुरुष भगवान श्री कृष्ण। तो ये भक्तों का सूचना। तो हमारा जो विचारधारा है, हमारा जो आचार्य है वैष्णवों का, वो ये इस पक्ष में रहेगा आपके हिसाब से। What do you think our परंपरा, आचार्य समाज परंपरा is in which time? Second, right? So we believe that the supreme not so. Basically, there are three levels of understanding the supreme personality of Godhead. So Brahmayeti Paramatmayeti Bhagavan, it is Satyadeva. So Parashara Muni, who is the father of Vyasdeva, he has told Brahmayeti Paramatmayeti Bhagavan, it is Satyadeva. So just like the sun can be understood at three levels. The sun can be first understood as sunlight, then the sun planet, and then the sun god. तो सूर्य जो है, सूर्य को हम लोग 3 लेवल पे समझ सकते हैं। पहला समझना, जिसको ज़्यादा जानकारी नहीं है वो समझता है कि सूर्य जो है उसका प्रकाश है। जैसे सूर्य का किरण आता है तो हम लोग कहते हैं कि उस सूर्य किरण से जो सूर्य का जो समझना, सूर्य का जो हमारा समझना है ना, समझ, वो एक पहला फर्स्ट स्टेप है। तो उसके बाद थोड़ा और आगे बढ़ेगा तो हम समझेगा कि एक सूर्य एक प्लैनेट ग्रह, सूर्य जो ग्रह है, और साइंटिस्ट के हिसाब से उधर लाइक हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन तो एक कन्वर्शन जो होता है उसके हिसाब से एनर्जी प्रोड्यूस होता है और सनलाइट का प्रोडक्शन होता है। तो ये सेकेंड लेवल है। और तीसरा लेवल में है, जैसा आप सोचो कि जैसा हम लोग बोला गवर्नमेंट होता है ना, गवर्नमेंट सरकार, तो सरकार कौन है? सरकार एक आदमी नहीं है ना, एक पूरा कैबिनेट है, मिनिस्टर्स है, और एक बिल्डिंग रहता है जैसे पार्लियामेंट है, जैसे कि विधानसभा है इधर। तो जो जिसको ज़्यादा आइडिया नहीं है वो सोचेगा कि विधानसभा गवर्नमेंट है, बिल्डिंग, लेकिन वो ज़्यादा उसका उतना अकल नहीं है ना। जो गवर्नमेंट है जैसे मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर, ये सब मिनिस्टर एक्चुअली चलाता है। तो जो बिल्डिंग को गवर्नमेंट समझता है उसका लेवल थोड़ा कम है, और जो समझता है कि मिनिस्टर सबसे बड़ा है तो उसका ज़्यादा, जैसे मोदी जी है, मोदी जी प्राइम मिनिस्टर है। तो इसी तरह भगवान का 3 लेवल का अंडरस्टैंडिंग है। सो फर्स्ट पहला जो समझना है ब्रह्मन, जो भगवान का जो ब्रह्म ज्योति है, वो ब्रह्म ज्योति जो है, ऐसा बताया गया है कि भगवान का जो वैकुंठ जो आध्यात्मिक प्रपंच है, वहाँ की जो प्रकाश और किरण जो लाइट आता है ना, वो ब्रह्म ज्योति है, वो एक लाइट है। वो लाइट का सोर्स है। लाइट कहाँ से आता है? भगवान से आता है। तो लाइट के पीछे भगवान है। तो इस तरह से हम लोग 3 लेवल पर अंडरस्टैंड कर सकते हैं भगवान का। तो ब्रह्मन, परमात्मा है, भगवान। तो परमात्मा जो हमारा सिद्ध है वो परमात्मा है। तो यहाँ पे जो बताया गया है कि जो इम्पर्सनलिस्ट जो है, तो ज्ञान मार्ग की जो अवलंबन करता है, वो समझता है कि भगवान लाइट है, उसको इतना ही जानकारी है लाइट। तो मेरा लक्ष्य क्या है? मुझे मोक्ष प्राप्त करना है, और वो भगवान को जो ब्राह्मण में मेरे को विलीन होना है, उसमें इधर जाकर रहना है, ये समझना है। लेकिन भक्त जो समझता है कि ये लाइट, उसके पीछे भगवान है, और भगवान का जो अनंत कोटि वैकुंठ लोक रहता है, जैसा कि हमारा भौतिक प्रपंच में बहुत सारा यूनिवर्स है ना, इसी तरह भगवान का भी धाम में बहुत सारा वैकुंठ लोक है। और वो उसमें सबसे ऊपर जो है वो गोलोक वृंदावन, जहाँ भगवान श्री कृष्ण अपना स्वरूप में स्वयं भगवान के रूप में विराजमान है, और वहाँ से भगवान का जो आनंद एक्सपेंशन
विस्तार, भगवान अलग अलग रूप में विस्तार किया है। और जैसा कि विष्णु है, नरसिम्हा है, वामन देव है, तो इस तरह का भगवान का जैसा बताया गया है कि जहाँ सागर में जो लहर है वो कभी बंद नहीं होता है, हमेशा चलते रहता है। उसी तरह का भगवान का जो विस्तार हमेशा चलते रहता है। तो भगवान का आनंद कोटि विस्तार है। और अलग अलग ब्रह्मांड में वैकुंठ लोक में भगवान, जैसे कि एक वैकुंठ में महाविष्णु, एक ब्रह्मांड नारायण, जैसे कि नरसिंह देव, इस तरह से अलग अलग वैकुंठ में भगवान है। ठीक है, तो भक्तों का लक्ष्य है भगवान धाम पहुंचना और भगवान के साथ आदान प्रदान करना। इसलिए रिलेशनशिप, जैसे कि भक्त और भगवान के बाद जो बीच में जो रिश्ता है वो यहाँ बौद्धिक प्रबंध में स्टार्ट होके शुरू होके वो करने कभी रुकता नहीं है। आध्यात्मिक प्रबंध में जाके भी भक्त भगवान का सेवा करता है। तो यही सबसे ज्यादा है। ठीक है, so we look at some shlokas. So Bhagavad Gita 2.59 says, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्ज्यं रसोप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। तो इसमें क्या बताया कि रसवर्ज्यं रसोप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। तो जो हम लोग शुरू बात किया हायर टेस्ट, तो व्हेन समबडी गेट्स ए हायर टेस्ट, जिसको एक ऊंचा हायर टेस्ट मिलता है, टेस्ट आपको मालूम है ना, रुचि। तो जब हमको हायर रुचि मिलता है, मतलब बेहतरीन रुचि का आनंद मिलता है, तो हम लोग छोटा मोटा रुचि को छोड़ देते हैं। तो इसी तरह हमको जब तक हमको हायर टेस्ट नहीं मिलता है तो हमको पूरा आनंद नहीं मिलता है। ये कहने का मतलब है श्लोक में। और भक्ति रसायन सिंधु में कहा गया है कि प्रापंचिकया बुद्धिया हरि संबंधी वस्तुना मुमुक्षुभि परित्यागो वैराग्य फाल्गु थे। तो ये फाल्गु वैराग्य मतलब एक नकली जो वैराग्य, हाँ। तो बेसिकली क्या है कि देखो दो चीज़ है। एक जो हम लोग दो मार्ग बताया ना, एक जो समझता है कि परम सत्य एक ब्रह्म है, प्रकाश है, और जो समझता है कि परम सत्य भगवान श्री कृष्ण है। तो ये दो बात बताया हमने। ठीक है, तो जो ज्ञान मार्ग में जो चलता है ना, वो क्या करता है कि सबका त्याग करता है। जो भी चीज़ है सबका त्याग। कोई जैसे कि वो चल के जाएगा, गाड़ी का यूज़ नहीं करेगा, कोई भी जैसे कि वॉच नहीं यूज़ करेगा, वो सबको त्याग देता है। लेकिन जो भगवान का जो भक्त है ना, वो क्या सोचता है कि सब कुछ भगवान का ही है। जो वॉच है, जैसे माइक है, ये लैपटॉप है, अगर मैं सोच सकता कि माइक का यूज़ नहीं करूँगा मैं, तो आपको सुनाई नहीं देगा पीछे बैठे। तो मैं सोचता हूँ कि सब कुछ भगवान का है, तो मैं भगवान का सेवा में यूज़ करूँगा। मैं किसी को त्यागता नहीं है, लेकिन सब चीज़ जो है भगवान का है, सब कुछ भगवान से आया हुआ है, तो वो सब कुछ भगवान का सेवा में मैं यूज़ करूँगा। तो इसको बोलता है युक्त वैराग्य। और जो छोड़ देता है ना, मतलब मैं कुछ भी नहीं यूज़ करेगा, नहीं ये नहीं चाहिए, वो उसको फालतू वैराग्य बोलता है। तो वो क्या है कि वो भगवान का जो साथ जो रिश्ता है हर चीज़ का, वो देख नहीं पा रहा है। ठीक है, तो जो युक्त वैरागी जो है वो समझता है कि सब कुछ भगवान से आया हुआ है। जैसे कि भगवान का और भगवान का जो विस्तार अलग अलग रूप है, फिर जो आध्यात्मिक जगत है, फिर बौद्धिक जगत है, और इतना सारा अन्नकोटि जीव जल है, सब कुछ भगवान से आया हुआ है। तो वो भगवान के साथ उसका कनेक्शन देखता है सब कुछ को। और जो भी चीज़ है वो मैं भगवान का सेवा यूज करता हूँ। तो ये युक्त वैरागी हो गया। ठीक है, टाइम इज नॉट सो। तो हम लोग एक कहानी, मतलब एक घटना देखेगा जो पुराण से है, जिसमें हम लोग चतुष कुमार के बारे में चर्चा करेंगे। 4 कुमारस। हाउ मेनी ऑफ यू हैव हर्ड अबाउट 4 कुमारस? आप में से कौन कौन चतुष कुमार के बारे में सुना है? आप बता सकते हैं? चतुष कुमार
तो इधर जो राइट साइड में दिख रहा चार है कुमार के बाद। चार कुमार हाँ। चंद्रश कुमार बोलते हैं चार कुमार। सना का सनातन सनत कुमार शरद कुमार को। तो चार चार कुमार है ये ब्रह्मा का मानस पुत्र माना जय जाता है विजय तो चंद्रश कुमार जो है ब्रह्मा का मानस पुत्र है जो ब्रह्मा जी से उनका जन्म हुआ है वो इन लोगों को ज्ञानी माना जाता है जैसे कि हम लोग दो पद बताया ना तो जो ज्ञान मार्ग में चलने वाला है चंद्रश कुमार शुरू में वैसा था तो फोर कुमारास they actually have taken the part of impersonal realization. So they have taken the path of ज्ञान मार्ग ज्ञान योगा. So शुरू में उन लोग वो उसमें ऐसा समझता था कि भगवान ब्रह्म जो है और ब्रह्म जो है वो ब्रह्मचोरी है ठीक है तो ज्ञान मार्ग में था लेकिन क्या होता है कि एक बार उन लोग ऐसा बढ़ के तो उन लोग बहुत ज्ञानी था और बहुत योगी भी था उसको बहुत मिस्टिक पावर जो बोलते हैं ना अष्टसिद्धि वो पूरा उसमें ये था तो लोग अपना शक्ति से ऐसे पूरा घूम के वैकुंठ पहुंच गया ऊपर जय विजय तो वैकुंठ में जैसा कोई भी ऐसा घुस नहीं सकता ना तो द्वारपाल वहाँ पे द्वारपाल का जय और विजय जैसा आप देख रहे हैं हाँ, कि जय साइड में विजय। तो उन लोगों को रोकता है कि आप आगे नहीं जा सकता है और कौन ऐसा पूछेगा तो इन लोगों को बहुत गुस्सा आ जाता है ठीक है वो सोचते हैं कि मेरे को हम लोग को क्यों रोकता है वो सोचता है कि वैकुंठ में तो कोई ऐसा duality को द्वारपाल द्वंद नहीं है मतलब जैसे कि यहाँ हमारा भौतिक जगत में ऐसा है खुशी दुख और क्या बोलते हैं अलग अलग ऑपोजिट रहता है ना द्वंद रहता है लेकिन वैकुंठ में ऐसा नहीं है तो जो कुमार को लगता है कि ये इधर रहने के योग्य नहीं है ये जो जय और विजय ठीक है तो उसके बाद थोड़ा ये बातचीत होता है और फाइनली इन लोग को श्राप देता है कि आप ना आप यहाँ रहने के लिए योग्य नहीं है आप धरती पे जाओ तो तब तक भगवान बाहर आ जाता है तो सेकंड फोटो में भी दिख रहा है ना भगवान आता है नारायण स्वयं आएगा बाहर और बोलेगा कि इनकी तरफ से माफ़ी मांगता है ना कि मेरा जो सर्वेंट है लोग इनकी तरफ से मैं आपको माफ़ी चाहता हूँ कि कुमार जो है उनको बहुत आदर करता हूँ और इनके लिए एक ये पूछता हूँ आपने जो श्राप तो दे दिया तो जितना भी जल्दी हो सकता है उनको वापस कराना है ऐसा तो वो इन लोग का बाद में लोग कौन बनता है अगले जन्म में हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष और उसके अगले जन्म में रावण और कुंभकर्ण और ब्रह्मदेव तो इस तरह से उनका 3 जन्म होता है ठीक है तो यहाँ हमको ये समझना है कि जब कुमार जो है भगवान विष्णु जब बाहर आता है ना तो कहा जाता है कि उनका जो पाद पद्म में जो तुलसी है उसका जो सुगंध उनका नाक में प्रवेश होता है और वो सुनने से वो भगवान के प्रति उनका भक्ति और प्रेम उनका जागृत हो जाता है तो बहुत सारों में से उन लोग ना कोई ज्ञान मार्ग में पड़ा था लेकिन उनको पूरा आनंद कभी मिलता नहीं था वो मार्ग में चलता था तो लेकिन जब भगवान का दर्शन होता है और भगवान का जो पाद पद्म से जो तुलसी का सुगंध उनके नाक में घुस जाता है तो उन लोग पूरा परिवर्तन उनका बहुत आनंद आ जाता है तो तब से उन लोग भक्त बन जाता है तो इस कारण से हमको ये समझ में आता है ना कि जो भगवान का भक्ति है और भगवान का जो रूप है वो सर्वश्रेष्ठ है क्योंकि ये कुमार तो ऐसा वैसा लुक नहीं था वो बहुत परम ज्ञानी था और परम योगी भी था तो उनका जो योगिक शक्ति से वो कभी हमेशा यही 4 साल का 5 साल का आयु में रहता है उससे आगे कभी होता नहीं है और ऐसा कोई वैकुंठ में नहीं जा सकता है लेकिन उन लोग इतना सिद्ध था कि उन लोग वैकुंठ तक पहुंच गया तो इतना महान लोग है फिर भी ना उन लोगों को भगवान का दर्शन से और भगवान का साक्षात्कार से उनका पूरा ये ज्ञान मार्ग का जो उनका जो आसक्ति पूरा निकल गया और वो भक्त बन गया भगवान का क्योंकि ये उनको ऐसे तो श्रीमद् भागवत में एक श्लोक आता है ये 3rd कैंडो 15th चैप्टर 40th श्लोक तो इसमें ये बताया गया कि तस्यारविंद नयनस्य पदारविंद पिंजल्कमिश्र तुलसी मकरंद वायु अंतर्गतस्व विवरेण चकार देशाम संक्षोभमक्षर कुशमपि चित्ततन्वो so इसका ये मतलब है when the breeze carrying the aroma of the tulsi leaves from the toes of the lotus feet of the personality of God entered the nostrils of those sages they experienced a change both in the body and the mind even though they were attached to the impersonal common understanding तो इसमें ये बताया गया कि जब भगवान का जो पाद पद्म में जो तुलसी था उसका जो सुगंध जब उनका नाक में प्रवेश करता है तो पूरा बदलाव आ जाता है उनका और उनका मन और शरीर पूरा बदलाव आ जाता है
और बताया गया कि वो पहला जो निर्गुण ब्रह्म से जो उनका आसक्ति था वो पूरा उनका छोड़ दी, मतलब वो निकल गया और वो भगवान का भक्त बन गया. It appears from this word that the four Kumaras were impersonalists and or protagonists of philosophy of monism, becoming one with the Lord. But as soon as they saw the Lord's features, their minds changed. In other words, the impersonalist who feels transcendental pleasure in striving become one with the Lord is defeated when he sees the beautiful transcendental features of the Lord. Because of the fragrance of his lotus feet carried by the air and mixed with the aroma of tulsi, their minds changed. Instead of becoming one with Supreme Lord, they thought it wise to be devotees. Becoming a servitor of the Lord, lotus feet of the Lord, is better than becoming one with the Lord. So basically, this sloka or this particular incident, no, is a proof that actually the impersonal Brahman is not the ultimate. So merging with the Brahman, right? So most of the people who are in the spiritual path, you know, if you look at most people, even today also, many of them actually their aim is to merge with the Brahman. आज का दिन में भी आप देखेगा ना तो बहुत सारा जो संस्थाएं हैं, बहुत सारे जो जैसा कि स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन आध्यात्मिक जो संस्थाएं हैं, आप देखेगा उनसे बात करेगा तो आपको ये पता चलेगा कि उनको पूछेगा आपका आत्यंतिक लक्ष्य क्या है, वो बोलेगा कि मेरे को ब्रह्म में विलीन होना है. तो लेकिन हमको अभी ये क्या समझ में आया कि ये इससे आगे भी है. वैसे मेरे जेल से निकल गया, अभी आगे क्या करने वाला है, राइट. तो इसी तरह ये जो ब्रह्म में विलीन होना अल्टीमेट नहीं है. वो बताया गया है कि वो ब्रह्म में विलीन होने के बाद भी ऐसा बोलता है कि जैसे कि बहुत करोड़ों वर्ष के बाद फिर उनको उधर रह नहीं सकते, वापस आ जाता है और ये धरती में, नहीं तो ये भौतिक ब्रह्म में वापस आके वापस हम लोग ये सब चीज़ चालू चक्कर में पड़ जाता है. तो ये शाश्वत नहीं है. तो जैसा कि ऐसा सोचोगे आप रॉकेट छोड़ दिया ना, तो रॉकेट का एक साइंस में एक जैसे कंसेप्ट ऑफ एस्केप वेलोसिटी, मतलब एक रफ्तार से ज़्यादा अगर स्पीड में रॉकेट छोड़ता है तो निकल जाता है अंतरिक्ष, लेकिन उससे कम है तो वापस मिल जाता है. तो जो ब्रह्म में जो विलीन होना इस लाइक जिसमें रफ्तार कम है, जाके जाके वापस आ जाएगा, थोड़ी देर रहेगा तो लेकिन वापस आ जाएगा. लेकिन आपको एक शाश्वत जगह चाहिए भगवान के चरण में, तो आपको क्या करना चाहिए, भक्ति मार्ग में भगवान का भक्ति करना है, भगवान का प्रेम करना है. एक्चुअली और एक स्टोरी था लेकिन टाइम नहीं है, एक प्रकाशन सरस्वती का कहानी था, लेकिन मैं थोड़ा संक्षिप्त रूप में इसके बारे में बताता हूँ. जो चैतन्य महाप्रभु है, भगवान कृष्ण का जो अवतार है कलयुग में, जैसा हम लोग देख सकते हैं ना, वो राइट साइड में चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु है. तो चैतन्य महाप्रभु 500 वर्ष पहले बंगाल में अवतार हुआ है. और उन्होंने ये कलयुग का जो लोगों का जो हालत है वो उनको पता चला कि ये बहुत गिरा हुआ है, इनका कोई चांस नहीं है बाहर निकलने का. तो उन्होंने ये कलयुग के लिए पद्धति आसूत्रण किया जो है संभंगम संगीत, भगवान का जो नाम का जप करना. तो आप देखेगा तो वेदों में सब में बताया गया, भागवत में देखेगा ना तो बताया कि कलेर दोष निधे राजन अस्ति एकान महान गुणा कीर्तनानेव कृष्ण से उक्त संग परम मुझे. तो कलयुग जो है वो जो दोषों से भरा हुआ है और दोषों का एक भंडार है. कलेर दोष निधे राजन अस्ति एकान महान गुणा, लेकिन एक महागुण है कलयुग का, क्या है, कीर्तनानेव कृष्ण से, भगवान हरि का जो कीर्तन जपने से उक्त संग परम मुझे, तो आपको मुक्ति मिलेगा और परम धाम आप पहुंच सकता है. तो हरिनाम का बोल. तो चैतन्य महाप्रभु क्या होता है कि वाराणसी जो है वो मायावादी, नहीं तो ये जो इम्पर्सनल जो हम लोग दो मार्ग बताया ना, जो तो क्या बोलता है माया ब्रह्मवाद, ऐसे बोलता है कि भगवान में लीन होना, ये जो मायावाद बोलता है, तो वो सन्यासी का जो हेडक्वार्टर्स बोलता है ना, राजधानी है, ठीक है. तो वाराणसी ऐसा पूरा सन्यासी का जगह था. तो चैतन्य महाप्रभु वहाँ पहुँच जाते हैं. तो चैतन्य महाप्रभु अपना जीवन का ज़्यादा टाइम जगन्नाथपुरी में बिताया, लेकिन उसके पहले नवद्वीप में था, लेकिन बीच बीच में वो भ्रमण करता था. तो एक बार वाराणसी में आ गया. तो वाराणसी में प्रकाशानंद सरस्वती जो आप दिख रहे हैं ना, जो हाथ उठा है चैतन्य महाप्रभु, तो बैठा हुआ है चैतन्य महाप्रभु है, और जो आप साथ पीछे वो प्रकाशानंद सरस्वती. प्रकाशानंद सरस्वती बहुत बड़ा ज्ञानी था, लेकिन वो ज्ञान मार्ग में था, और उसका 40,000 से 60,000 उनका शिष्य था पूरा वाराणसी में. तो चैतन्य महाप्रभु जब आता है तो चैतन्य महाप्रभु ने जो हरिनाम संकीर्तन का ये किया ना, हरिनाम संकीर्तन करता था, और जब जहाँ जहाँ वो जाता था वो कीर्तन करता था और नाचता था वहाँ कीर्तनों में.
और उनका जो संघ में जो है सब लोग, तो वाराणसी में आके उन लोग ना भजन कीर्तन करता है। लेकिन प्रकाश सरस्वती को थोड़ा उसके तरफ ईर्षा और जलन आ जाता है, मतलब ईर्षा आ जाता है, क्योंकि सब लोग उसका कार्य करते हैं ना। ये बड़ा तो चैतन्य महाप्रभु जैसे दिख रहा है अपना, वो बहुत उसको देखने में बहुत प्रकाशित था। वो एक भगवान जैसा ही, तो सब लोग बोलते थे कि नारायण ही स्वयं आ गया इधर, ठीक है। लेकिन प्रकाश सरस्वती को अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि वो नाचता है, ये सब करता है, उसको अच्छा लगता है। क्योंकि जो नाम मार्ग में जो है वो हमेशा क्या होता है, शास्त्रों का अध्ययन करता है और वेदांत का चर्चा करता है और इसका डिस्कशन करता है, तो ये इसको अच्छा नहीं लगता था। तो एक बार एक तपन मिश्रा एक भक्त था और एक महाराष्ट्र एक ब्राह्मण था, जो चैतन्य महाप्रभु को के साथ क्या अनुरोध करता है कि आप इनका आपको प्रकाश सरस्वती को आपका आशीर्वाद दीजिए, उसको मर्सी दे दो, आप उनको ये कर दो, मुक्त करा दो। ऐसा करके एक चैतन्य महाप्रभु बहुत हम्बल था, विनम्र था। उनको कभी दिखाता नहीं था कि मेरे को ज्ञान है, लेकिन उसको बचपन में उसको नुमाई पंडित बोलता था, उनको पूरा शास्त्र का ज्ञान था। तो क्या होता है कि जल्दी मैं बोलता हूँ, तो सब लोग ना उनको ये रिक्वेस्ट करके प्रकाश सरस्वती उसका जो सम्मेलन जो है, क्या बोलते हैं उसको, सब लोग उनका जो शिष्य जो है सब लोग बैठा था और वेदांत का चर्चा होता था। तो चैतन्य महाप्रभु उधर लेके आता है, तो चैतन्य महाप्रभु को बहुत विनम्र भाव में, वो जहाँ पे सब लोग अपना हाथ पैर धोता है ना, वहाँ पे बैठता है, वो अंदर नहीं जाता है। तो ये देखिए प्रकाश सरस्वती को, उसको देख के लगता है कि कुछ परिवर्तन आ जाता है। भगवान का जो दर्शन, जो साक्षात्कार होता है, पूरा हमारा हृदय का परिवर्तन होता है। भगवान का दर्शन जब मंदिर जाता है ना, तो भगवान और मंदिर में जो मूर्ति है कोई भिन्न नहीं है, अभिन्नतम नाम नामिनम। तो प्रकाश सरस्वती चैतन्य महाप्रभु को बुलाते हैं, अंदर आओ, अंदर बैठना नहीं चाहिए, अंदर आके बैठिए। फिर उनका जो उनके साथ जो संवाद होता है वेदांत के बारे में, और प्रकाश सरस्वती चैतन्य महाप्रभु पूछे, आप ना, आप कितना बड़ा आपने जो संन्यास लिया है और आपका गुरु ईश्वर प्रिय है, आप है ना हमेशा ये नाचना फिरना ये सब क्यों आपको शोभा नहीं देता है, ऐसा क्यों कर रहा है, ऐसा पूछेगा। तो चैतन्य महाप्रभु बताएगा, मेरा गुरु जो है वो देखा, मुझको देख के लगा कि ये मूर्ख है और मैं और कुछ नहीं कर सकता है, मैं वेदांत का पढ़न नहीं कर सकता है, मेरे को सिर्फ नाचना और भगवान का नाम जपना, इतना ही मेरे लिए। ऐसा वो बहुत विनम्र ये रहता है। फिर उसके बाद वेदांत का चर्चा होता है और चैतन्य महाप्रभु और प्रकाश सरस्वती पूरा हार जाता है जो संवाद में, और आखिर में क्या होता है कि प्रकाश सरस्वती ना चैतन्य महाप्रभु का चरण ग्रहण करता है और बोलता है कि मुझे आपका शिष्य बना दो। और इस तरह से चैतन्य प्रकाश सरस्वती और उसका पूरा शिष्यगण जो वाराणसी में है, सब लोग भगवान का भक्त बन गया, वैष्णव हो गया। और प्रकाश सरस्वती बाद में प्रभुरानंद सरस्वती के नाम पे जाना जाता था वैष्णव परंपरा में। तो इस तरह से इसमें भी हमको ये क्या समझ में आता है कि भगवान का जो भक्ति मार्ग है वो सर्वश्रेष्ठ है। चैतन्य महाप्रभु भी चर्चा में वही बोलता है कि आप लोग ये सब वेदांत पढ़ता है, लेकिन आपको आनंद मिलता है क्या, ऐसा पूछता है। उन लोग बोलेंगे नहीं। तो भगवान का आनंद तभी होता है कि भगवान का सेवा, क्योंकि हम लोग सब भगवान का अंश है। तो भगवदगीता में बताया कि अमय वंशो जीव लोगे जीव भूदासनादना अनश्रेष्ठानिंद्रियाणि प्रकृति सानिकर्षणी। तो हमारा जो हम भगवान का अंश है और हमारा जो कर्तव्य है, हमारा जो सेवा है, भगवान का सेवा में रहना है, ये हमारा ये। तो वो जीव का स्वरूप हुए कृष्ण ने नित्यदास। चैतन्य महाप्रभु बोलता है जीवेर स्वरूप होए कृष्ण है ना नित्यदास। तो जीव का स्वरूप जो है, हमारा जो स्वरूप है, ओरिजिनल हमारा जो धर्म है भगवान का सेवा है। और जब हम हमारा भगवान का ओरिजिनल हमारा धर्म में जब हम लोग मग्न हो जाता है, तब हमको कुछ आनंद मिलता है। जैसे कि मछली का धर्म है पानी में रहना। मछली को पकड़ के सोने का पिंजरे में बंद कर दिया, उसको सब कुछ दे दिया, उसको आनंद नहीं आएगा ना, मर जाता है, क्योंकि उसका जो स्वरूप है पानी में रहना, तैरना है। इसी तरह जीव का स्वरूप भगवान का सेवा है। इसलिए हम लोग ना जब भी भगवान का कुछ भी सेवा करता है, भगवान का नाम जपता है, कोई भी भगवान का चीज सेवा करता है, हमको एक्चुअली आनंद, जो सचमुच जो आनंद है वो मिलेगा। जो दूसरा आनंद जो हमको टीवी देखने में मिलता है, तो कुछ अच्छा खाने में मिलता है, वो सब टेम्पररी है, थोड़ी देर के लिए रहता है। लेकिन भगवत सेवा में जो हमको आनंद मिलता है, वो कभी, वो आनंद है, वो हमेशा रहता है, कभी बंद नहीं होता है, शाश्वत है। तो इस तरह से, तो इसलिए हमको क्या करना चाहिए, भगवान का सेवा में जुड़ना चाहिए, भगवान का नाम जपना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग अभी एक माला जाप हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें। तो किसी को कोई शक है, क्वेश्चन ऑन दिस टॉपिक?
Anybody has any questions? Questions?